Okay, so let me start with the formal presentation. The topic is outcome-based education and its implementation. So what is the need of this particular topic? Since 2015, the focus of higher education in India is on what the learner should learn and to what extent he has learned. So after 2015, the policymakers have decided that we are going to implement this outcome-based education in India, and now the focus will be on what the learner is learning, not what the teacher is delivering. So presently what we are following that whatever we know, we are going to deliver that. Whether the student learns or not, we are not bothered about that. But in this case, outcome-based education, we are going to check whether the student has learned or not. So learning is measured in terms of to what extent a specified outcome has been attained by the student. I will be explaining all these terms, what is outcome, how it can be attained also. And the NEC assess the university based on a set of criteria, and outcome-based education, OBE, is a part of criteria 1 and 2. So criteria 1, since I am looking after, so I have to deliver this. But if we can say the implementation part, mainly concerned with the criteria 2, how the mapping will be done. In criteria 1, we only need you write program outcome, course outcome, program specific outcome. But in criteria 2, they need to map this also. So I will be covering both the aspects 1 and 2. So outcome based education, all teaching and learning activities in higher education institution should be planned and conducted to facilitate the students to attain well-defined and measurable outcomes. This is highlighted because we have to write the outcomes in such a way that they should be well-defined and measurable. And this is what we call as outcome-based education. Now, what are the outcomes of this workshop? Since we are talking about the outcome-based education, so we must know what are the outcomes of this workshop. So these are the 3 major outcomes that I believe that these 3 outcomes will be achieved during this workshop. First is the understand the nature of outcome-based education and objective and outcomes of an undergraduate program as required by NEC. Second objective is to understand Anderson, Bloom, Vincenti taxonomy and the 3 domains of learning. And third outcome will be write outcomes of a course in an engineering program. It is for engineering, you can write in the same way for the other departments as well, that address a subset of program outcomes and program specific outcome. So course outcome will be a subset of program outcome and program specific outcome. So once you achieve course outcome, then only you can think about achieving PSO and PO. So outcome based education was first used and presented by William Spady in his book Outcome Based Education, Critical Issues and Answers in 1994, and the focus in OBE is on essential for all the students to be able to do successfully at the end of their learning experience. So this is again an important term, that it is essential for all the students to, whatever they are learning, they will be able to explain it or do it successfully at the end of their learning experience. So for example, in case of BTech, at the end of 4 years, what the students will be able to do is defined as program outcome. So this means is starting with the clear picture of what is important to students to be able to do, and then organizing curriculum, instructions and assessment to make sure this learning ultimately happens. So as we have started here, we have started with the clear picture that what we are going to learn. We are going to learn these 3 things in this workshop, and you already know what are the objectives or outcomes of this workshop, and that then only we are going to tell the students, okay, this is the outcome as per this is the curriculum, this is your assessment, this is the instructions, and basically you are going to achieve this outcome through this way. So first we define the outcome, then we give the instructions in the class, and based on the instructions only we decide the assessment or question paper so that he can achieve that outcome. So what is an outcome? What is an outcome? An outcome is what the learner
will be able to do or perform as a result of some learning experience. So this is the simple definition. What the learner, what the student will be able to perform as a result of some learning experience. Learning experience means it can be theoretical, practical, whatever it can. So the focus is on do or perform, not the words like know, familiar and so on. So we cannot write in course outcome that the student will be familiar with strength of material subject, or a student will be familiar with stress strain diagram. Not possible. He should be able to do something. He should be able to design a beam. He should be able to perform something once we teach him. Outcome provides the basis for an effective interaction among the stakeholders. You already know stakeholders are like student, alumni, parents, employer. So it is basically an effective interaction between these stakeholders. What is the features of an outcome statement? It should be unambiguously state that what the student should be able to do. उसके अलावा और कुछ लिखना ही नहीं है. आउटकम स्टेटमेंट में सिर्फ यही बात होनी चाहिए कि क्या कर सकता है स्टूडेंट ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद या ये प्रोग्राम करने के बाद. उसके अलावा और कोई बात नहीं. What the students do or perform are observable and assessable. तो जो वो करेगा और परफॉर्म करेगा वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए और मेजरेबल होना चाहिए, एसेसेबल होना चाहिए. स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस. कोर्स आउटकम ऐसा लिखना है या प्रोग्राम आउटकम ऐसा लिखना है जिससे उसका मतलब स्टूडेंट को भी समझ आ सके कि ये कोर्स आउटकम का मतलब ये है. इतना कॉम्प्लिकेटेड लिख दिया कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहा है तो वो अचीव कैसे करेगा उसको. इट शुड बी एबल टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स टू प्लान देयर लर्निंग. नाउ देयर आर 4 लेवल्स ऑफ आउटकम. प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, प्रोग्राम आउटकम, प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम एंड कोर्स आउटकम. नेक में हमें क्या चाहिए? मेनली प्रोग्राम आउटकम चाहिए, कोर्स आउटकम चाहिए, लेकिन चारों जानना जरूरी है. प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद द विजन एंड मिशन ऑफ द डिपार्टमेंट. अब आपका स्टूडेंट 4 से 5 साल बाद, आपके यहाँ से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद 4 से 5 साल बाद वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड अगर आप लिखेंगे दैट इज नोन एज प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव. तो सबसे पहले तो आपका विजन होना चाहिए जो हमारी यूनिवर्सिटी का है, मिशन वो भी है. अब आपको अपने डिपार्टमेंट का विजन और मिशन तैयार करना है. जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में गौरव सर के वहाँ मैंने लगा हुआ देखा विजन और मिशन लगा रखा है. ऐसे ही हर डिपार्टमेंट का विजन और मिशन होना चाहिए. और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि हमारे इस विजन और मिशन से रिलेटेड हमारे प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है. उसके बाद प्रोग्राम आउटकम डिफाइन करेंगे. प्रोग्राम आउटकम का सिंपल सा मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ प्रोग्राम, बीटेक करने के बाद उसको यदि बीटेक करते समय 4 साल बाद जब वो कंप्लीट करेगा 8 सेमेस्टर का, जब उसका रिजल्ट आएगा तब तक उसको क्या क्या आ जाना चाहिए. ये इसका मतलब है प्रोग्राम आउटकम. प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम. तो बीटेक के लिए 12 प्रोग्राम आउटकम ऑलरेडी स्पेसिफाइड है. एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के द्वारा 12 आउटकम ऑलरेडी उन्होंने फिक्स किए हैं. तो हम उसी को यूज करते हैं नेक के अंदर भी. लेकिन प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम इज टू बी डिफाइंड बाय द बोर्ड ऑफ स्टडीज. जो आपका बीओएस का मीटिंग होता है उसमें आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम डिफाइन करने हैं. प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम है कि बीटेक सिविल करने से वो क्या सीखेगा और मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बीटेक सिविल करने से क्या सीखेगा, वो हो गया प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम. तो हो सकता है मेवाड़ की सिविल में हम हो सकता है कि सर्वे के बारे में ज़्यादा बताते हैं या हो सकता है कि स्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा बताते हैं. तो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम आर डिफाइंड बाय द डिपार्टमेंट. तो डिपार्टमेंट डिफाइन करेगा कि भाई मेरा ये प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम है. 3 से 4 आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम अपने लिख लेने हैं. और जनरली लिखने का आसान तरीका ये है, जैसे मैकेनिकल में 3 स्पेशलाइजेशन है जनरली, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डिजाइन हो गया, थर्मल हो गया. तो एक एक तीनों से लिख लिया प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम. ऐसे ही आपके फार्मेसी में हो सकते हैं स्पेशलाइजेशन, तो उनसे आप लिख सकते हैं. और कोर्स आउटकम, कोर्स का मतलब यहाँ पे नेक के अंदर आप सब जानते हैं कि सब्जेक्ट है. जो हम सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वही यहाँ नेक में कोर्स है. तो उस सब्जेक्ट को या उस कोर्स को पढ़ने से क्या क्या वो सीखेगा, वो सारे कोर्स आउटकम है. सो दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दैट आफ्टर 4 to 5 years ऑफ ग्रेजुएशन वो आपकी जो पास आउट स्टूडेंट है वो क्या कर रहे होंगे. हमने लिखा भी बीटेक मैकेनिकल का स्टूडेंट कार डिजाइन कर रहा होगा, लेकिन पता चला वो तो आईटी कंपनी में काम कर रहा है. लेकिन ठीक है, हमारा प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव तो यही था कि हम उसको डिजाइन इंजीनियर बनाए, लेकिन वो बन गया आईटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो बन सकता है क्योंकि अभी मार्केट में डिमांड उसकी ज़्यादा चल रही है. लेकिन लिखा तो हो ही जाएगा कि हम क्या सिखा रहे हैं. अब उसने क्या पढ़ा मैकेनिकल में, हो सकता है उसके कुछ भी काम नहीं आ रहा, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम उसको मैकेनिकल सिखाएं. फॉर एग्जाम्पल, solve problems of social relevance applying the knowledge of mechanical engineering
एंड और परस्यू हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा फील्ड के अंदर जाके, या फिर हायर एजुकेशन या रिसर्च में कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा। सो प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज आफ्टर 4 to 5 years ऑफ ग्रेजुएशन वो क्या करेगा आपका पास आउट स्टूडेंट। प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम PSO स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर प्रोग्राम 2 से 4 आप लिख सकते हैं। इट शुड स्टार्ट विद 1 or more एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स शुड बी फॉलोड बाय clearly identified technical objects and if required by conditions under which the action have to be performed। तो प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम जब आप लिखेंगे तो उसको एक्शन वर्ब से स्टार्ट करना है। एक्शन वर्ब क्या होती है अभी हम आगे देखेंगे, और उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि ये करके ये चीज़ सीख जाएगा। और अगर कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन भी लिखी होगी। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं एग्जाम्पल 1, सर्वे मैप एंड प्लान लेआउट फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स एंड अलाइनमेंट फॉर कैनल्स एंड रोड्स यूजिंग सम सर्वे टूल। तो यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम है कि ये हम बीटेक सिविल के लिए हमने लिखा हुआ है कि बीटेक सिविल वाला ये सीखेगा कि सर्वे करेगा, मैप करेगा और प्लान लेआउट फॉर द बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर्स एंड अलाइनमेंट फॉर कैनल्स एंड रोड्स और यूजिंग सम सर्वे टूल। ये कंडीशन है, कोई सा भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये वाला टूल यूज करना है तो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो रेड कर रखा है हमने ये सारी एक्शन वर्ब है। एक्शन वर्ब क्या है, फॉर्मुलेट कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है, कंसीव, डिजाइन, प्लान, आर्किटेक्ट, बिल्ड एंड सो ऑन। तो इन एक्शन वर्ब से आपको प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम अपना लिखना है। और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, मैं स्किप करूंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोग्राम आउटकम पे। प्रोग्राम आउटकम आर द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब व्हाट द नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड स्टूडेंट्स शुड हैव एट द टाइम ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ ए प्रोग्राम। तो आपका बी फार्मा 4 साल बाद उसको कम से कम ये चीज़ तो आनी चाहिए। ये हमारा लिखा रहेगा प्रोग्राम आउटकम के अंदर। इंजीनियरिंग क्योंकि 5 डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग के हैं तो वहाँ पे हमारे पास 12 प्रोग्राम आउटकम ऑलरेडी डिफाइंड है। हो सकता है कि आपके यहाँ पे भी हों, लेकिन मुझे उनका आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग के बता रहा हूँ। 12 प्रोग्राम आउटकम्स ऑलरेडी डिफाइंड बाय NBE। तो उसमें कुछ डिसिप्लिन से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ प्रोफेशनल हो सकते हैं, लेकिन ये जो 12 आउटकम है ये सारी इंजीनियरिंग के लिए सेम है। तो CS के लिए अलग से प्रोग्राम आउटकम लिखने की जरूरत नहीं है, मैकेनिकल के लिए अलग से नहीं लिखना है। सारे बीटेक प्रोग्राम के 12 प्रोग्राम आउटकम ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये जनरल एबिलिटीज या एट्रीब्यूट्स तो होने ही चाहिए एक इंजीनियर में। फॉर एग्जांपल PO1 जिसको हम बोलते हैं इंजीनियरिंग नॉलेज के नाम से, ये इसका हेडिंग है। अप्लाई द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, साइंस, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स एंड एन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। तो ये कुछ इस तरीके से 12 आउटकम लिखे हुए हैं। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है लेकिन स्पेसिफाइड है, इसलिए हमें ज़्यादा उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि 12 प्रोग्राम आउटकम है तो हर एक को हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और आपका क्योंकि 5 दूसरे डिपार्टमेंट भी है हमारे पास, तो आपको अपने हिसाब से अपना देखना पड़ेगा। कहीं किसी ने लिख रखा है तो उसको कॉपी करना पड़ेगा। जावेद सर से रिक्वेस्ट है कि वो बाहर चले जाएं। जावेद सर बाहर चले जाओ, पानी वानी पी के आ जाओ, आराम से नींद आ रही है। मैंने पहले कहा 3 बजे बाद की क्लास में दिक्कत आती है ना। मैं भी अगर पीछे पीछे बैठता हूँ मैं भी सो जाता। अभी संजय सोनी सर भी नजर ध्यान है मेरे को, कल भी सो गए थे वो। अगर आपका पड़ोसी आपको जगाएगा। चलिए, तो अगर कोई नींद आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है ना। ये 10 डिपार्टमेंट जो नेक में है उनके लिए जरूरी है, उनमें जो फैकल्टी पढ़ाती है सब्जेक्ट उनके लिए जरूरी है। उसके अलावा अगर किसी को नींद आ रही है तो जा भी सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं। तो प्रोग्राम आउटकम इंजीनियरिंग नॉलेज इस तरीके से लिखा हुआ है। कैसे आपको अचीव करना है उसके लिए एक्टिविटीज़ दी हुई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन प्रोग्राम आउटकम्स की हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके लिए आप चाहें तो YouTube पे वीडियो अवेलेबल है, NPTEL पे वीडियो अवेलेबल है, टीचिंग एंड लर्निंग इन इंजीनियरिंग और टीचिंग एंड लर्निंग इन जनरल प्रोग्राम्स। तो वहाँ से आप उसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं। So I will skip this. Then is course outcome. Course outcome are what students are required to attend at the end of a course. तो एक सब्जेक्ट या कोर्स जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे नेक के अंदर, वो कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट को क्या क्या आ जाना चाहिए, वो सारे आपके कोर्स आउटकम हो गए। इट शुड बी ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल और इट इज ए सबसेट ऑफ PO एंड PSO। तो जो आपका PO और PSO लिखा हुआ उसी का सबसेट है, उसके थ्रू ही आप प्रोग्राम आउटकम और कोर्स आउटकम को अचीव करने वाले हैं। ये एग्जाम्पल हो सकता है CS डिपार्टमेंट का हो, आप सब ज़्यादा जानते होंगे। अंडरस्टैंड
the divide and conquer strategy for designing algorithm including measures, merge sort, quick sort and selection sort हो सकता है। तो इस तरीके से कोर्स आउटकम लिखा जाता है। इसमें क्या है आपके पास कि वो क्या सीखेगा, किस तरीके से सीखेगा और क्या क्या कंडीशन उसके लिए जरूरी है। वो हम अभी और डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल लिया मैंने, हो सकता है कंप्यूटर का हो, सिविल का हो, मैकेनिकल का, मुझे भी नहीं पता, लेकिन है एक एग्जाम्पल। कंप्यूटर का ही आगे बढ़ेंगे तो टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग पे चलते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द अलाइनमेंट बिटवीन कोर्स आउटकम, द इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। तो हमने कोर्स आउटकम लिख लिए, उसके हिसाब से हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हमें कोर्स आउटकम अचीव भी कराना है, तो उसके हिसाब से हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्लास में, वो इंस्ट्रक्शन हो गया। और जब हम असेसमेंट करेंगे फाइनली उसका एट द एंड टर्म एग्जाम या मिड टर्म एग्जाम में, तो उसका असेसमेंट, ये तीनों अलाइनमेंट में होने चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब कि कोर्स आउटकम तो अलग लेवल पे लिखा है, आप चाहते तो हो कि बच्चा बीम डिज़ाइन करे, लेकिन आप पढ़ाते नहीं हो तो बच्चा बीम डिज़ाइन कर ही नहीं पाएगा। तो आपके इंस्ट्रक्शन और कोर्स आउटकम, तो कोर्स आउटकम में आपने लिख दिया डिज़ाइन अ बीम, है ना। अब डिज़ाइन अ बीम, तो फिर वो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में भी आपको डिज़ाइन करवानी पड़ेगी उससे बीम, ठीक है। और इसी तरह से आपको असेसमेंट में भी आपको पूछना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज अ बीम, तो व्हाट इज अ बीम, तो फिर सीखा कैसे वो डिजाइन करना। आपका कोर्स आउटकम था कि भाई डिजाइन करना है बीम को, और आप पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बीम, तो वो नहीं हो पाएगा। तो अलाइनमेंट होना चाहिए कि जो आपको सिखाना है वही कोर्स आउटकम है, वही इंस्ट्रक्शन है, और वही फाइनली आपका असेसमेंट में भी आप उसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो टेक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग बेसिकली क्या है, इट गिव्स अ स्ट्रक्चर टू द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग बिहेवियर्स एंड द लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द ब्रेन फंक्शंस। तो वर्ड यूज किया लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अभी समझना बहुत मुश्किल है। हर एक आदमी का, हर एक स्टूडेंट का, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका दिमाग अलग तरीके से काम कर रहा होगा अभी भी, तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए टेक्सोनॉमी दिया है कि भाई ठीक है, इससे आपको आसानी होगी। कई सारी तरह की टेक्सोनॉमीज हैं, उसमें से हम जो पढ़ेंगे वो एंडरसन ब्लूम टेक्सोनॉमी, जिसको हम फॉलो करेंगे। एंडरसन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। अब यहाँ पे आपके पास डोमेन्स ऑफ लर्निंग, जो हमारा सेकंड आउटकम था, 3 डोमेन्स होते हैं लर्निंग के। पहला है कॉग्निटिव, दूसरा है अफेक्टिव और तीसरा है साइकोमोटर, ठीक है। अब ये फिर एक अलग कहानी है, लेकिन इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग में पर्सन्स एबिलिटी टू प्रोसेस एंड यूटिलाइज इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल वे। तो कॉग्निटिव का मतलब है कि हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर सके, समझ सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग। इसके अंदर 2 कैटेगरी हैं जिसको हम डिटेल में और देख लेंगे। कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं कई सारे, और नॉलेज कैटेगरीज होती हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अफेक्टिव और साइकोमोटर बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी, हमारे स्कोप से बाहर है, वैसा हम समझ लें, ठीक है। तो साइकोमोटर जनरली स्पोर्ट्स में, थिएटर में, डांस में, म्यूजिक में, वहाँ ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। और अफेक्टिव बहुत बार इमोशंस भी हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। तो उसमें एक एग्जांपल दिया जाता है कि भाई हम जब स्टूडेंट एग्जाम अटेम्प्ट करता है तो शुरू के 3 घंटे में से, शुरू के 2.5 घंटे बहुत आराम से करता है पेपर, या लास्ट के 5-10 मिनट में उसका हाथ बहुत तेजी से चलने लगता है, वो बहुत इमोशन हो जाता है कि भाई अब तो मेरे को सारा पेपर आज ही अटेम्प्ट करना है, आप लेना चाहते हो तब भी नहीं देता। तो वहाँ पे उसकी लर्निंग प्रभावित होती है। अब हम चलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस, 6 तरह के जो हमें यहाँ पे देखने हैं एंडरसन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के अनुसार। सबसे पहला है रिमेंबर। सीधा हम समझ सकते हैं कि रिट्रीविंग रिलेवेंट नॉलेज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आपसे पूछा भाई व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, या व्हाट इज 2+2, तो आप बता सकते हैं या स्टूडेंट बता सकता है, तो वो उसकी रिमेंबर वाला कॉग्निटिव प्रोसेस काम कर रहा है कि उसमें वो इन्फॉर्मेशन आपको रिट्रीव करके दे देगा, ठीक है। या स्टेट इम्प्रूव द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो इस तरह के जब क्वेश्चन हम पूछते हैं तो बेसिकली हम उसकी रिमेंबर कैपेसिटी चेक कर रहे हैं। तो हम एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम सारे कॉग्निटिव लेवल के क्वेश्चंस पूछें। हम जो क्वेश्चन पूछते हैं मेनली क्या है, उसके रिमेंबर कैटेगरी, वो याद करके आएगा, उस टाइम उसको याद आ गया तो लिख देगा, नहीं याद आया तो फिर वो नहीं लिख पाएगा। सारे जो क्वेश्चन है वो रिमेंबर कैटेगरी के हम जनरली पूछते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हम पूछते हैं एग्जाम के अंदर वो होते हैं अंडरस्टैंड कैटेगरी से।
तो जहाँ पे हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन मैसेज देंगे और वो उसको रिप्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जांपल, एक्सप्लेन व्हाई इन अ डीसी मशीन फ्लक्स पर पोल डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लोड. तो यहाँ पे उसको समझ के आंसर देना पड़ेगा, जहाँ पे वो कुछ एक्सप्लेन करेगा कि भाई डीसी मशीन का फ्लक्स लोड बढ़ने के साथ साथ कैसे कम होता जाता है. तो यहाँ पे उसकी अंडरस्टैंड वाला कॉग्निटिव लेवल काम में आएगा. और इस तरह के क्वेश्चन अंडरस्टैंड कैटेगरी के अंदर आते हैं. उसके बाद है थर्ड, विच इज अप्लाई. अप्लाई में आपको कुछ, आपने उसको क्वेश्चन दिया, वो कुछ एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा, सॉल्व करेगा प्रॉब्लम्स. आपने एक न्यूमेरिकल दे दिया, मान लीजिए फाइंड आउट द एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल पावर प्लांट, और उसमें कुछ वैल्यूज दे दी उसको. फाइनली यू हैव टू फाइंड कि भाई इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, यू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल पावर प्लांट. तो इस तरह के जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, जो हम कहते हैं एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम, वो अप्लाई कैटेगरी में आते हैं. तो जनरली मेनली जो हम क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो इन 3 कैटेगरी से ही पूछते हैं. इसलिए बाकी की 3 मैं बता भी नहीं रहा हूँ, है ना, वो 3 हमने स्किप कर दिए. लेकिन नाम उनका आगे बता देंगे आपको कि नाम क्या क्या है. उसके बाद नॉलेज कैटेगरी. नॉलेज कैटेगरी जनरल कोर्सेज, मतलब अदर देन इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 4 तरह की नॉलेज कैटेगरी बनती है: फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निटिव. ठीक है, ये क्या क्या है इनके बारे में बात करेंगे अभी. और इसके अलावा स्पेसिफिक टू इंजीनियरिंग ये 4 और बनती है. तो कभी इंजीनियरिंग वालों को जरूरत पड़ेगी तो अलग से 4 और बताएंगे. फैक्चुअल नॉलेज कैटेगरी. बेसिक एलिमेंट द स्टूडेंट मस्ट नो इफ दे आर टू बी एक्वेंटेड विद द डिसिप्लिन और सॉल्व प्रॉब्लम्स फ्रॉम इट. तो बेसिक नॉलेज उसको पता होना चाहिए. डेंसिटी ऑफ आयरन इतनी होती है, या पावर फ्रीक्वेंसी जो हमारी है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज है. तो ये बेसिक अजम्पशंस हैं जो उसको, या बेसिक नॉलेज है उसको पहले से पता होता है, जिसके हिसाब से वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है. तो ये फैक्चुअल नॉलेज है, उसको हर बार देने की जरूरत नहीं है. डेंसिटी ऑफ वाटर आप 1000 लीजिए, वो अपने आप लेगा. कंसेप्चुअल डिनोट्स ऑल द एंटाइटीज, फिनोमेना एंड रिलेशंस इन अ गिवन कैटेगरी और क्लास यूजिंग डेफिनेशन. कंसेप्ट जितने भी हैं, चाहे फोर्स की डेफिनेशन या फोर्स का कंसेप्ट, एक्सेलरेशन का, या न्यूटन्स लॉ, किरचॉफ लॉ, व्हाटएवर, तो ये सारे कंसेप्चुअल चीजें हैं जो उसको पता होनी चाहिए या कंसेप्चुअल में आती है. अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इट इज अ कंसेप्चुअल काइंड ऑफ थिंग, तो वो पूछ सकते हैं. प्रोसीजरल, जहाँ पे किस तरीके से सॉल्व करना है, हाउ टू डू समथिंग. इसमें आपका फॉर एग्जांपल सॉल्विंग मैट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर डिजाइनिंग ए फिल्टर एज पर स्पेसिफिकेशन. अब ये फिल्टर हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, हो सकता है और कहीं हो. तो डिजाइनिंग ए फिल्टर एज पर स्पेसिफिकेशन इज अ प्रोसीजरल नॉलेज या प्रोसीजरल नॉलेज कैटेगरी. और फाइनली मेटाकॉग्निटिव. मेटाकॉग्निटिव का मतलब इतना सा है कि अपने खुद के नॉलेज के बारे में खुद को पता होना चाहिए कि मुझे कितना आता है. डू आई नो व्हाट आई नो. तो ये एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स का लेवल क्या है. बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है मुझे सब कुछ आता है, और उसको आता नहीं है. वो स्किप कर देता है कि भाई चैप्टर 1 तो या यूनिट 1 तो मुझे समझ में आ गया, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, यूनिट 2 से स्टार्ट करता हूँ. और यही गलती हो जाती है कि हो सकता है कि यूनिट 1 ही उसको समझ में नहीं आया. तो यहाँ पे एज ए टीचर हमें ध्यान देना है कि वो आपका जो स्टूडेंट है उसको कितना आया है समझ में, वो भी आपको पता होना चाहिए. सो एवरीवन शुड हैव क्लियर नॉलेज अबाउट वंस ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. तो ये टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग का चार्ट है. हो सकता है कि इतना क्लियर पीछे नहीं होगा, लेकिन अब इसकी हम एक बुक आपको शेयर कर देंगे नेक वाले ग्रुप के अंदर, जहाँ पे ये सारा चीज़ डिटेल में लिखी हुई है. तो लर्निंग के डोमेन्स बता रखे हैं: कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर, और एक और लास्ट में दिया हुआ है स्पिरिचुअल, वो हमने अभी कंसिडर नहीं किया. फिर कॉग्निटिव के अंदर नॉलेज कैटेगरीज हैं: स्पेसिफिक टू इंजीनियरिंग और जनरल. इसी तरह से कॉग्निटिव में प्रोसेस हैं, यहाँ पे आपके सारे नाम आ जाएंगे: क्रिएट, इवेलुएट, एनालाइज, जो हमने 3 डिस्कस नहीं किए थे, और अप्लाई, अंडरस्टैंड और रिमेंबर. तो ये टोटल 6 कॉग्निटिव प्रोसेस हैं, और 4 नॉलेज कैटेगरी आप मान लें: फैक्चुअल, कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निटिव. अफेक्टिव और साइकोमोटर हम डिस्कस नहीं कर रहे. अब आपको इस तरह की एक टेबल बनानी है. टेबल कब बनानी? जब आप कोर्स आउटकम लिख लेंगे उसके बाद. एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी टेबल बोलते हैं इसको. एक तरफ सारे आपके कॉग्निटिव प्रोसेस लिखे रहेंगे. सबसे लो लेवल का अगर हम बात करें, या तो रिमेंबर है, उसके बाद अंडरस्टैंड, देन अप्लाई, एनालाइज, इवेलुएट और क्रिएट. ये 6 तरह के कॉग्निटिव प्रोसेस हैं. तो आपको देखना है कि आपका कोर्स आउटकम किस कैटेगरी का या किस कॉग्निटिव प्रोसेस को बिलोंग करता है. और ऐसे ही आपका 4 नॉलेज कैटेगरीज हैं: फैक्चुअल,
कंसेप्चुअल, प्रोसीजरल और मेटाकॉग्निटिव। तो मान लीजिए आपने कोई कोर्स आउटकम लिखा, तो हो सकता है कि वो नॉलेज कैटेगरी में फैक्चुअल को रिप्रेजेंट करे और इधर अंडरस्टैंड को, तो वो 2,1 इस तरीके से हम मैट्रिक्स में या सेल में लिखते हैं। तो फर्स्ट वाली रो आपकी हो जाएगी 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, और इस तरह से आप कोर्स आउटकम को इसमें फीड कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि आगे जो है वो अब इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ तक तो थ्योरी थी कि हमने क्या क्या बेसिक इंफॉर्मेशन, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और एक बार में हो जाएगी ऐसा भी जरूरी नहीं है। अब हो सकता है बाद में भी पढ़ के इसको समझ लें, लेकिन इस तरह से टेक्नोनॉमी टेबल हमें बनानी है। और अगर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो थोड़ा सा उसमें एंडरसन ब्लूम विंसेंट की टेक्सोनॉमी टेबल है, जहाँ पे 4 हमारी नॉलेज कैटेगरीज और बढ़ गई हैं। फंडामेंटल डिजाइन प्रिंसिपल, क्राइटेरिया एंड स्पेसिफिकेशन, प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स एंड डिजाइन इंस्ट्रूमेंटलिटीज, तो ये 4 और बढ़ जाती, तो 6/8 की टेबल बनती है फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज। फॉर ऑल अदर कोर्सेज इट इज 6/4। बाकी भी लोग चाहें जहाँ पे इस तरह की चीजें हैं तो बना सकते हैं 6/8 भी। अब हम आते हैं कि कोर्स आउटकम जो हमें लिखना है, उससे पहले कोर्स के 3 एलिमेंट हैं। पहला आउटकम, दूसरा असेसमेंट और तीसरा इंस्ट्रक्शन। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी को लगता है कोई डाउट है तो पहले पूछो। ये सारे पॉइंट हमें उसमें एक तरह से लिखने भी पड़ेंगे। अभी हम आगे लिखेंगे एक एक चीज़ को, तो हम देखेंगे किस तरीके से हम उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। जिस तरह से हम स्कीम बनाते हैं, सिलेबस और स्कीम, वैसे ही हमें हर सब्जेक्ट के लिए कुछ एक टेबल बनानी पड़ेगी। वो टेबल अभी हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए बेसिक क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें कॉग्निटिव प्रोसेस का नॉलेज थोड़ा सा पता होना चाहिए और नॉलेज कैटेगरीज के बारे में पता होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है नेक के हिसाब से, जो हमें आगे लिखनी भी है। तो ये 3 एलिमेंट है कोर्स के। कोर्स आउटकम, स्टूडेंट क्या करने वाला है एट द एंड ऑफ कोर्स। असेसमेंट कैसे करेंगे, थ्रू असाइनमेंट, टेस्ट और एग्जामिनेशन जो हम करते हैं। और इंस्ट्रक्शन टू फैसिलिटेट द लर्नर अटेनिंग द कोर्स आउटकम, तो उसको हमें मदद भी करनी है। ऐसा नहीं कि मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, बच्चा फेल हो गया तो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, बच्चा फेल हो गया तो भी हमें उसको देखना, अगली बार कोशिश करनी है कि कम बच्चे फेल हों। तो उसके लिए हमें उसे फैसिलिटेट करना है टू अचीव दैट कोर्स आउटकम। नेक्स्ट इज, तो ये जो तीनों हैं, कोर्स आउटकम, असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन, इन तीनों के बीच में मैंने जैसा पहले बताया अलाइनमेंट होना चाहिए, तीनों एक लेवल में होने चाहिए। तो उसके लिए हमें असेसमेंट जो है वो अलाइनमेंट में होना चाहिए कोर्स आउटकम के साथ। तो ये मैंने एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया कि अगर हमें बीम डिज़ाइन करनी है, सर्किट डिज़ाइन करवाना है बच्चे से एग्जाम में, तो पहले तो हमें उसे बताना पड़ेगा क्लास में और करके भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ बता दिया कि ऐसे ऐसे डिज़ाइन होता है, पढ़ लेना घर पे जाके, और वो नहीं कर पाया डिज़ाइन। तो हमारे असेसमेंट जो है वो इन अलाइनमेंट विद कोर्स आउटकम होना चाहिए, और इंस्ट्रक्शन जो है वो अलाइनमेंट उसका होना चाहिए असेसमेंट के साथ। तो आप क्लास में उसको डिज़ाइन करके भी दिखाएं, तभी आप उसको एग्जाम में पूछें, अदरवाइज पूछने से फायदा नहीं है। तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं उस टेबल के अंदर, एंडरसन ब्लूम टेक्सोनॉमी टेबल में, कि हमारा जो कोर्स आउटकम है, मान लीजिए कोर्स आउटकम 3 था, वो कोर्स आउटकम 3 भी प्रोसीजरल नॉलेज कैटेगरी का था और अंडरस्टैंड कॉग्निटिव प्रोसेस को बिलोंग करता है। तो हमारे इंस्ट्रक्शन और असेसमेंट दोनों ही उसी सेल के अंदर आने चाहिए। आपने क्वेश्चन तो कोर्स आउटकम तो डिजाइन कर दिया अंडरस्टैंड और प्रोसीजरल में, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिमेंबर और प्रोसीजरल में, तो गलत हो जाएगा। तो गलत ये हो जाएगा कि आपका कोर्स आउटकम अचीव नहीं होगा। तो कोर्स आउटकम अचीव भी करना है। अचीव कब होगा, जब आपका सेम लेवल का क्वेश्चन, जिस लेवल पे आपने कोर्स आउटकम बनाया है उसी लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कोर्स आउटकम अचीव नहीं हो पाएगा। और इंस्ट्रक्शन भी उसी लेवल पे होने भी चाहिए। अब हम देखते हैं कि पीओ और पीएसओ का कैसे अटेनमेंट होता है, आगे देखेंगे। तो पीओ और पीएसओ अटेनमेंट के लिए बेसिकली हमारे पास क्या क्या आइटम्स हैं। एक हमारे पास है कोर्स, जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। दूसरा प्रोजेक्ट्स, अगर प्रोजेक्ट करा रहे हैं या इंटर्नशिप करा रहे हैं। को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज,
इन विच द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज इवेल्युएटेड। तो जहाँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं इन सबका रिकॉर्ड रखना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि हमारा प्रोग्राम आउटकम या PSO कितना % अचीव हुआ है। एक्टिविटीज़ जो होंगी उनमें सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए। तो हम वो एक्टिविटीज़ नहीं ले सकते जैसे कि यूनिफेस्ट वाली एक्टिविटी, वो नहीं ले सकते क्योंकि उसमें सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते। एक्टिविटीज़ हम इसमें जो ले सकते हैं, को करिकुलर में प्रेजेंटेशन, चार्ट, असाइनमेंट ले सकते हैं अगर उसमें हमने 100% बच्चों को पार्टिसिपेट कराया है या 100% एलिजिबल है टू पार्टिसिपेट, तो वही एक्टिविटी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। अदरवाइज कोर्स के अंदर भी आप इलेक्टिव कोर्सेज नहीं ले सकते अगर आपके कुछ बच्चे उसको ऑप्ट करते हैं, कुछ ऑप्ट नहीं करते हैं, तो वो भी आप नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं कि CO जो हम लिखते हैं, कोर्स आउटकम जो लिखते हैं, जो आपने भी लिख रखे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर, उसको क्या क्या उसमें होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, दोनों हम बात करेंगे। अगर आप उसको जाके देखें, अगर इस तरीके से बना हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो रिवाइज भी करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले 3 एलिमेंट हैं। पहला है परफॉर्मेंस। कोर्स आउटकम में ये 100% होना चाहिए कि ये चीज़ पढ़ने के बाद या ये कोर्स पढ़ने के बाद स्टूडेंट को ये तो आ ही जाएगा, he will be able to do or perform something। ये उसमें 100% कोर्स आउटकम का पार्ट होना ही चाहिए। उसके बाद कंडीशन का मतलब ये है कि अगर कहीं कोई कंडीशन है उसके अंदर, इफ एनी, कि भाई आपको ये चीज़ सर्वे करना है यूजिंग दिस स्पेसिफिक टूल, तो वहाँ बताएं कि या सर्वे करना है या कोई ड्राइंग आपको बनानी है तो स्पेसिफाई कर दें कि भी ऑटोकैड में ही बनानी है, तो वो कंडीशन हो जाएगी स्पेसिफाइड। तो कंडीशन जरूरी नहीं है, अगर है तो आप लिखें, नहीं है तो जरूरी नहीं है, परफॉर्मेंस को लिखना ही लिखना। और क्राइटेरिया भी अगर उसमें कोई आप देना चाहते हैं तो दें, अगर पॉसिबल है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनेगा। कोर्स आउटकम जब आप लिखेंगे अपने सिलेबस में या कहीं पे भी एक जगह पे, तो उसमें एक लाइन सबसे ऊपर स्टूडेंट विल बी एबल टू, तो ये तो कॉमन स्टेम हो गया, तो सबसे ऊपर लिख दिया जाएगा। हर बार लिखने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट विल बी एबल टू परफॉर्म, स्टूडेंट विल बी एबल टू इवेल्युएट, वो सारी चीज़ें नहीं लिखनी है। ऊपर कॉमन में लिख दें स्टूडेंट विल बी एबल टू, और नहीं भी लिखेंगे तो वो अंडरस्टूड है कोर्स आउटकम में स्टार्टिंग में ये होना। उसके बाद आप लिखेंगे एक वर्ब फ्रेज और एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब, एक्शन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट कि क्या करेगा। तो वर्ब में वर्ब फ्रेज स्टेट्स द मेंटल प्रोसेस बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द कॉग्निटिव लेवल्स। तो जो भी आपकी वर्ब है वो रिमेंबर, अप्लाई, अंडरस्टैंड, एग्जीक्यूट, इवेल्युएट और क्रिएट, इसमें से किसी एक लेवल की वर्ब आपको यूज करनी है, एक्शन वर्ब यूज करनी है। और ऑब्जेक्ट मतलब किस तरह का टाइप ऑफ नॉलेज कैटेगरी में से आप किस तरह का नॉलेज उसको देना चाहते हैं, तो वो कोर्स आउटकम का पार्ट होगा। कंडीशन और क्राइटेरिया ऑप्शनल है, अगर होना है तो हो सकता है, नहीं तो नहीं भी होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हमने कोर्स आउटकम के लिखे हुए हैं। पहला है आपका प्रिपेयर एंड एक्सप्लेन फाइनेंशियल फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। आई थिंक मैनेजमेंट साइड से है ये। तो यहाँ पे प्रिपेयर एंड एक्सप्लेन तो हो गया आपका एक्शन वर्क, ये कोर्स आउटकम का एग्जांपल हम दे रहे हैं। प्रिपेयर और एक्सप्लेन हो गया एक्शन वर्क, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया ऑब्जेक्ट कि क्या उसको प्रिपेयर करना है या क्या उसको एक्सप्लेन करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। और कंडीशन इसके अंदर है यूजिंग फंड फ्लो एंड कैश फ्लो, तो ये इसकी कंडीशन हो गई। इस तरीके से आपका कोर्स आउटकम स्टेटमेंट लिखा जाएगा। तो जिसमें सबसे पहला एक्शन वर्क कि इसके आगे आप मान लें कि ये लिखा हुआ है स्टूडेंट विल बी एबल टू, ये सब में बाय डिफॉल्ट है, स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रिपेयर एंड एक्सप्लेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजिंग फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। तो ये पूरा आपका एक तरह से कोर्स आउटकम एक हुआ मैनेजमेंट का। इसी तरह से फ्लूइड का हम देख सकते हैं मैकेनिकल और सिविल में। कैलकुलेट मेजर एंड माइनर लॉसेस एसोसिएटेड विद द फ्लूइड फ्लो इन पाइपिंग नेटवर्क। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोर्स आउटकम की कैलकुलेट, ये तो हो गया एक्शन वर्क, स्टूडेंट विल बी एबल टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करेगा, मेजर एंड माइनर लॉसेस विद द फ्लूइड फ्लो। और कहाँ करेगा, इन पाइपिंग नेटवर्क, तो यहाँ पे पाइप में कर सकता है, डक्ट में कर सकता है, तो डिफरेंट कंडीशंस में ऑपरेट करेगा। फिर इसी तरह से डिटरमाइन द डायनेमिक अनबैलेंस्ड कंडीशंस ऑफ ए गिवन मैकेनिकल सिस्टम ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कोर्स आउटकम। डिटरमाइन यहाँ पे हो गया आपका एक्शन वर्क, उसके बाद क्या डिटरमाइन करेगा, द डायनेमिक अनबैलेंस्ड कंडीशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और अंडर विच कंडीशन, और मैकेनिकल सिस्टम ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट। तो ये इस तरीके से कोर्स आउटकम लिखा जाता है। सिमिलरली प्रोसेस डेटा इन हडूप क्लस्टर यूजिंग हाइव एंड पिग स्क्रिप्ट्स, ये शायद CS का।
अब इसको हम ए बी टेबल के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमने 3 एग्जाम्पल दिए, 3 सैंपल लिए थे S1, S2, S3, ये हमारे किस लेवल के हैं। तो तीनों में हम क्या कर रहे हैं कि तीनों में अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेजर एंड माइनर लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू अप्लाई सर्टेन प्रोसीजर, कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। सो इट इज बिलोंगिंग टू अप्लाई कैटेगरी और अप्लाई कॉग्निटिव प्रोसेस, और नॉलेज कैटेगरी में कंसेप्चुअल और प्रोसीजरल दोनों है। तो हम इसको इस तरीके से लोकेट कर सकते हैं एबी टेबल के अंदर। कितने होने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है कि सीओ कितने लिखे हैं, है ना, कितने लिखे हैं। इसके लिए हमने अभी इस बार तो बाय डिफॉल्ट 5 करवा दिए हैं सभी में। वैसे अगर आपका 3 क्रेडिट का कोर्स है तो एनबीए कहता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, की 6 आप लिख सकते हैं कोर्स आउटकम। 6 में आप प्लस माइनस 2 कर लें, 4 से लेके 8 तक आप 3 क्रेडिट वाले कोर्स के लिए लिख सकते हैं। तो जहाँ स्पेसिफाइड नहीं है वो इसको यूज करें। 4 क्रेडिट का कोर्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, 8 तक लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2, 6 से लेके 8 तक के आपके कोर्स आउटकम लिखे जा सकते हैं फॉर 4 क्रेडिट। इंजीनियरिंग में हमने अभी इस बार बाय डिफॉल्ट सभी में 5 करवा दिए। अब आपका जो असेसमेंट होगा 2 तरह से होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव, जो हम जनरली यहाँ फॉलो करते हैं। एक जहाँ पे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, ये सारा आपका समेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव में जहाँ पे आप बेसिकली क्लासरूम एक्टिविटीज जैसे कि क्विज वगैरह अगर आप क्लास में करवाते हैं, सो दैट इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है, सीओ लिखते वक्त क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो भी देख लें। डोंट यूज द वर्ड्स लाइक सच एज, वेरियस, डिफरेंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉलेज एलिमेंट। तो आप इस तरह के वर्ड यूज नहीं करें। अंडरस्टैंडिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ बीम, इस तरह का वर्ड आपको कोर्स आउटकम में नहीं लिखना है। स्पेसिफाई करते हैं द स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम एंड फिक्स बीम। कोई वेरियस नहीं, क्योंकि वेरियस आप समझ सकते हैं कि आपने बहुत सारी तरह की बीम पढ़ी, लेकिन उसको तो पता नहीं ना वेरियस कितनी तरह की बीम उसको पढ़नी है। तो उसको क्लियर ही नहीं है कि मेरा कोर्स आउटकम क्या है, मेरे को कितनी सारी बीम्स पढ़नी भी है इसके अंदर। तो इस तरह के वर्ड यूज ना करें। पुट इन एफर्ट टू मेक द सीओ स्टेटमेंट एज डिटेल्ड एज पॉसिबल एंड मेजरेबल। जितना डिटेल में लिख सके उतना डिटेल में लिखना है सीओ, और मेजरेबल तो होना ही चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं लिखनी है कि उसको आप मेजर ही नहीं कर सकें। तो कुछ हम एग्जांपल देखते हैं किस तरीके से गलत लिखा जाता है। स्टूडेंट्स विल एग्जीक्यूट मिनी प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स मिनी प्रोजेक्ट करेंगे, तो इसमें कोर्स आउटकम नहीं हुआ कुछ भी, है ना, ना ही कोई एक्शन वर्ब है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, और उस तरीके से लिखा भी नहीं गया। ठीक है, और करेंगे तो उसको आपने मेजर कैसे करना है वो भी स्पेसिफाइड नहीं है। हैव द कंसेप्ट ऑफ कंपनसेटर। हैव द कंसेप्ट मतलब कैसे चेक करोगे, उसको कंसेप्ट आया ही नहीं है। आपने कह दिया कि वो हैव द कंसेप्ट ऑफ कंसंट्रेटर होगा उसको, या कंपनसेटर होगा, लेकिन कंसेप्ट चेक करने का तरीका क्या है कुछ पता ही नहीं है। इस तरह का भी नहीं लिख सकते हैं। फिर इसमें ऑप्टिमल जनरेटर शेड्यूलिंग फॉर थर्मल पावर प्लांट बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर पैकेज इन द लैब। अगेन यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है कि स्टूडेंट क्या सीखेगा वो तो बताओ। ये तो सिलेबस का पार्ट हो गया, सिलेबस से एज इट इज लाइन कॉपी करी और पेस्ट कर दी सीओ के अंदर, लेकिन इसमें स्टूडेंट का आउटकम क्या है, स्टूडेंट क्या सीखेगा वो नहीं बताया। विल गेट नॉलेज ऑफ प्रोटेक्शन स्कीम, तो फिर नॉलेज कैसे पता करोगे कि मिला या नहीं मिला, उसको चेक करने का कोई तरीका नहीं। टू कंटिन्यू द स्टडी ऑफ एडवांसमेंट इन मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी। अब ये कोर्स आउटकम तो है नहीं, वो आगे जाके मटेरियल साइंस मेटलर्जी पढ़ेगा तो ठीक है उसमें, लेकिन कोर्स आउटकम क्या होगा, स्टूडेंट करेगा क्या उस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, वो हमें लिखना है कोर्स आउटकम में। आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड सॉल्व मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स यूजफुल टू सोसाइटी। दिस इज अगेन नॉट अ कोर्स आउटकम। हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपिंग एप्लीकेशन दैट यूटिलाइज डेटाबेसेस। तो इस तरीके के कोर्स आउटकम नहीं लिखने, ये भी आपको बता रहे हैं। तो इस तरीके का ना लिखें, और लिख रखे हैं तो हटा दो। अब हम जो कोर्स आउटकम हमने लिखे हैं उनको टैग करेंगे विथ कॉग्निटिव लेवल। तो जितने भी कोर्स आउटकम आपने सब्जेक्ट वाइज लिख दिए, अब वो किस लेवल का है, किस लेवल का मतलब वही 6 लेवल है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, एनालाइज, एग्जीक्यूट, क्रिएट, इवेल्युएट। तो उसी में से आपको उसको टैग करना है। शॉर्ट फॉर्म में लिख लें RUAP फॉर अप्लाई, AN फॉर एनालाइज, E एंड C। इस तरीके से हम उसके सामने लिख देंगे।
ऐसे ही हम कोर्स आउटकम के सामने नॉलेज कैटेगरी भी लिख देंगे कि ये फैक्चुअल नॉलेज का है, प्रोसीजरल का है, मेटाकॉग्निटिव का है, और इसका फिर हम पीएसओ के साथ भी लिख देंगे कि ये जो कोर्स आउटकम है ये किस पीएसओ को बिलोंग करता है। इसमें आप समझ लें 3 तरह के या 4 तरह के हमने बात की कि पीएसओ 3 से 4 होंगे जो कि आपके स्पेसिफिक ब्रांच के अकॉर्डिंग होंगे। तो मान लीजिए मैकेनिकल का एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट है, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल रिलेटेड है डिजाइन से हमारे यहाँ मैकेनिकल के अंदर। तो मैकेनिकल का एक पीएसओ डिजाइन से होगा, एक थर्मल से और एक मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग से। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जितने भी कोर्स आउटकम होंगे वो सारे के सारे डिजाइन से रिलेटेड हैं, तो इसलिए वो पीएसओ फॉर एग्जांपल 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सब्जेक्ट के जितने भी कोर्स आउटकम हैं जनरली वो किसी एक ही पीएसओ से रिलेटेड होंगे। उसके बाद हम सीओ के सामने पीओ भी लिख देंगे कि कौन सा सीओ किस पीओ का पार्ट है। तो हम हर एक कोर्स आउटकम को डिफाइन करने के बाद उसी के सामने टेबल में मेंशन करेंगे कि इस वाले सीओ को अगर बच्चा अचीव करता है ही विल बी एबल टू अचीव दिस प्रोग्राम आउटकम एज वेल। तो वो हम वहाँ पे लिख देंगे। जनरली जो ये खुद कहते हैं कि मेनली हम PO1 के अलावा कोई भी PO अचीव करते ही नहीं। 1 से लेकर 12 में जनरली जितने भी प्रॉब्लम हमारे हैं एग्जाम के अंदर वो PO1 के होते हैं, बाकी के बहुत कम होते हैं। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे बाकी POs को भी इंक्लूड कराने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से एक टेबल बन जाएगी फाइनली। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन सब्जेक्ट की बना रखी है। क्रेडिट 310 आप सब समझते हैं। 3 टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स है, 1 ट्यूटोरियल है, 0 प्रैक्टिकल है इसके अंदर। और इस तरह से आपको टेबल बना देनी है हर एक सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले क्या हो गया, कोर्स आउटकम। जितने भी कोर्स आउटकम है, मान लीजिए 7 कोर्स आउटकम है, सातों कोर्स आउटकम लिखना है। उसके बाद वो किस पीओ या पीएसओ को बिलोंग करते हैं, तो उसके सामने हमने मेंशन कर दिया पीओ और पीएसओ को। यहाँ पे पीओ और पीएसओ को मेंशन कर रखा है। तो जनरली आप देखें सब में PS01 है और पीओ भी 1 है। तो मेनली PO1 और PSO1 को ये सब्जेक्ट एड्रेस करता है। उसके आगे हमने कॉग्निटिव लेवल, अंडरस्टैंड, अप्लाई, अप्लाई, अंडरस्टैंड और अप्लाई। तो अंडरस्टैंड और अप्लाई कॉग्निटिव लेवल के ही ये CO बना रखे हैं। फिर नॉलेज कैटेगरी की अगर हम बात करें, फैक्चुअल और ये सारी यहाँ पे लिख रखी है। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, इलस्ट्रेट द टर्मिनोलॉजी ऑफ मैकेनिज्म। तो ये एक CO है। द स्टूडेंट विल बी एबल टू, ये इसमें बाय डिफॉल्ट रिटर्न है, इलस्ट्रेट द टर्मिनोलॉजी ऑफ मैकेनिज्म। तो उसमें वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर रहा है मैकेनिज्म क्या क्या है, किस तरह की है, और उसको वो बता पाएगा इस कोर्स को पढ़ने के बाद। तो नॉलेज किस प्रकार का है, फैक्चुअल नॉलेज है, लेवल क्या है, अंडरस्टैंड कैटेगरी के अंदर है। उसके बाद हमको इसके आगे क्या लिखना है, क्लास सेशंस, कितने क्लास सेशंस आपको लगेंगे और कितने ट्यूटोरियल लगेंगे। ये पूरी टेबल हर एक फैकल्टी को जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ाता है उसमें बनानी पड़ेगी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेक के लिए ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। तो इसमें आपको पहले कोर्स आउटकम सारे लिखने पड़ेंगे अपने सब्जेक्ट के। उसके बाद आपको पीओ और पीएसओ किससे वो बिलोंग करता है वो मेंशन करना है। देन कौन सी नॉलेज कैटेगरी का है जो हमने एक्सप्लेन किया, नॉलेज कैटेगरी और कॉग्निटिव लेवल, और उसके आगे कितने क्लास सेशन लगेंगे। तो जरूरी नहीं कि सब में बराबर लगे। फर्स्ट वाले CO में 3 लेक्चर्स और 1 ट्यूट में काम हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे CO3 और CO4 में आप देखें तो 8 लेक्चर्स लग रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं कि हर एक CO को बराबर टाइम दिया जाए, वो डिपेंड करता है कि CO कैसा लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको उसको टाइम देना है। तो टोटल आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और ये इस तरह की टेबल फॉर्म की। ऐसे ही फ्लूइड के लिए बना सकते हैं। तो फ्लूइड में भी आपके पास यहाँ आप देखें तो इन्होंने PO1 और PSO1 को लिखा है, 5 ही आउटकम बना रखे हैं, और कितने कितने क्लास सेशन लगेंगे, क्योंकि 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, कोई भी ट्यूट नहीं है, तो सारे ट्यूटोरियल इसमें वाला पार्ट 0 हो जाएगा। और कौन कौन सी कैटेगरी और नॉलेज कैटेगरी और कॉग्निटिव लेवल सारे लिख दिए। जी कोई सवाल से? मैं लगातार बोलता रहूंगा तो मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए। कोई सवाल होगा तो थोड़ा ठीक रहेगा। बताता हूँ सर। ये नॉलेज कैटेगरी हमारे पास इंजीनियरिंग में टोटल 8 है, वैसे जनरल 4 है। अब फॉर एग्जांपल ये वाला CO4 देखें आप। CO4 डिटरमाइन द फ्रिक्शन लॉसेस इन बियरिंग्स एंड पावर ट्रांसमिटेड इन बेल्ट टर्न्स। ये हमारा कोर्स आउटकम है।
अब इसके अंदर दो नॉलेज कैटेगरी है, एक पी प्रोसीजरल और एक फंडामेंटल डिजाइन प्रिंसिपल जो स्पेसिफिक टू इंजीनियरिंग है कि यहाँ पे डिजाइन प्रिंसिपल का भी यूज होगा। या इससे ऊपर वाला देख लें, प्रेडिक्ट द मोशन ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म ग्राफिकली एंड मैथमेटिकली। तो यहाँ कंसेप्चुअल भी है और प्रोसीजरल नॉलेज भी है। तो दो कैटेगरी नॉलेज कैटेगरी हो सकती है और एक कॉग्निटिव लेवल में भी कॉग्निटिव लेवल एक होगा, नॉलेज कैटेगरी मल्टीपल भी हो सकती है, क्योंकि एक ही कंसेप्ट के अंदर आप कुछ कंसेप्चुअल नॉलेज भी देंगे एक ही सीओ में और उसी के अंदर आपको जरूरत पड़ी कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व कराने की, तो आपका प्रोसीजरल भी हो सकता है। फिर आपका अगर डिजाइन करवाने का जरूरत है तो FDP वाला फंडामेंटल डिजाइन प्रिंसिपल वाला कैटेगरी में भी आपका हो सकता है नॉलेज कैटेगरी। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हम एग्जाम्पल लेंगे अभी। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सीओ अटेनमेंट कैसे होगा और क्वालिटी लूप से हमारा क्या मतलब है। तो ये आपका कोर्स है, इस कोर्स को आपने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ कोर्स आउटकम, और कोर्स आउटकम में आपने असेसमेंट पैटर्न डिसाइड किया, क्या क्या असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट आप यूज करने वाले हैं, क्विज लेंगे, असाइनमेंट लेंगे, प्रेजेंटेशन लेंगे, चार्ट लेंगे, एंड सेमेस्टर एग्जाम कराएंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि कितना स्टूडेंट ने अचीव किया। दूसरी तरफ हमारे पास कोर्स आउटकम का टारगेट भी हमने सेट करना है कि इतना हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट है मान लीजिए 80%, बच्चों ने अचीव किया 60%, तो उसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि टारगेट कितना था और अचीव कितना हुआ। तो उसमें गैप आएगा कुछ ना कुछ, जो हमारा टारगेट था हो सकता है उतना अचीव नहीं किया, उससे ज़्यादा कर लिया। अगर ज़्यादा कर लिया तो हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, और अगर कम किया है तो हमें बच्चों को लेवल और लाना पड़ेगा। तो अगर गैप है तो उसके लिए हम फिर उसको क्लोज करने के लिए बात करेंगे, और अगर ज़्यादा अचीव कर लिया है तो टारगेट को बढ़ाएंगे फिर हम। तो ये, और फिर सीओ का जो अटेनमेंट है उससे हम निकालेंगे कि पीओ और पीएसओ का अटेनमेंट कितना हुआ है। ठीक है, आगे जो सारी कैलकुलेशन होगी वो आपकी नॉर्मल एक्सेल शीट पे हो सकती है, बट कंसेप्चुअल जो बात थी वो मैंने यहाँ तक बता दी। पीछे कोई सवाल होगा लाइफ साइंस में? ठीक है, तो हम सीओ कितना अटेंड हुआ वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास मार्क्स होने चाहिए, जो हमारे पास जनरली, क्योंकि हमारी खुद की यूनिवर्सिटी, तो हमें पता चल जाएगा कि हर सीओ में कितने मार्क्स मिले। तो मान लीजिए 5 सेक्शन है सब्जेक्टिव के अंदर, उसमें से जो भी क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया है उसमें कितने कितने नंबर उसको मिले हैं, वो हमारे पास ही है डेटा, और उससे हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली दो तरह के असेसमेंट आइटम दो जगह पे हो सकते हैं। एक तो टीयर 1 कॉलेजेस जो कि ऑटोनॉमस नहीं है, उनके लिए अलग तरीके से असेसमेंट होता है, और क्योंकि हम ऑटोनॉमस हैं, यूनिवर्सिटी है, हमारे पास सारे मार्क्स हैं, हर एक क्वेश्चन के मार्क्स अवेलेबल है, तो हमारे लिए असेसमेंट का तरीका अलग होगा। तो मान लीजिए इस तरीके की टेबल हम बना लेते हैं टायर 1 कॉलेज में, जहाँ पे टीयर 1 कॉलेज के अंदर हमारे पास सारे सीओ में कितना कितना अचीवमेंट हो रहा है उसका। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ A1 A2 लिखा है, असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 5-5 नंबर के हम मान लेते हैं। हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन चार्ट असाइनमेंट है तो तीनों लिख देंगे, प्रेजेंटेशन चार्ट असाइनमेंट। ठीक है, अब CO1 CO2 से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपने असाइनमेंट में पूछा है, उसमें एवरेज मार्क्स कितने आए बच्चों के, वो हमने यहाँ लिख दिया। तो 5 नंबर में से 2 नंबर का क्वेश्चन CO2 का था, उसमें से 1.5 क्लास का एवरेज है। फिर CO3 का 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 0.7 एवरेज है। ऐसे ही CO4 में 1.7 एवरेज है आउट ऑफ 2। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन जो हमने असाइनमेंट में दिया वो किसी न किसी CO का दिया होगा, बिना मतलब तो देंगे नहीं, तो उसमें कितने उसके मार्क्स आए वो एवरेज निकाले असाइनमेंट 1 और 2 में। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमने मिड टर्म लेते हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2 लेते हैं, उस केस में भी हम 15 में से 5 नंबर का क्वेश्चन CO1 का था, 5 का CO2 का, एवरेज कितना रहा क्लास का, वो मार्क्स हमको नोट डाउन करने हैं टेबल पे। और इसी तरह से सेकंड वाले केस में सेकंड टेस्ट में कितना मिला, तो टोटल क्लास का एवरेज CO1 के लिए कितना हो गया, 3.3 आउट ऑफ 5, 66% अचीवमेंट है। सेकंड CO2 के लिए 80% है, CO3 के लिए 75.5%। इस तरीके से हम एक पूरी टेबल बना सकते हैं, जहाँ पे इसमें जो मॉडिफिकेशन करना है वो ये है कि हमारा सिस्टम जो है प्रेजेंटेशन चार्ट असाइनमेंट वाला और एंड टर्म में जो 85 मार्क्स है उसके हिसाब से, तो हमको देखना पड़ेगा कि हर एक क्वेश्चन में कितना % उसको एवरेज मार्क्स क्लास को मिलता है। अब उसके बाद
ये तो हो गया अटेनमेंट वाला पार्ट। दूसरा हमें सेट करना है टारगेट, कि हम टारगेट कितना सेट करें। तो एक तरीका तो ये है टारगेट सेट करने का कि हम सबका टारगेट कर दें कि सारे CO 60% तो अचीव होने चाहिए। आसान तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं कि सारे CO का टारगेट 60% है, फिर हम गैप निकाल लेंगे उसके हिसाब से। या फिर हम इस तरह से टेबल बना सकते हैं जिसमें हम टारगेट दे सकते हैं कि भी हमारी क्लास में से इतने बच्चे 10% बच्चे 50 से नीचे वाले मार्क्स वाले होने चाहिए, 50 से 65 में 40% होने चाहिए, 65 से 80 में 30% और 80 से ज़्यादा वाले 10% होने चाहिए। तो इस तरह से भी टारगेट दिया जा सकता है CO का। तीसरा, हर एक CO का अलग अलग टारगेट दिया जा सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जो आसान है वो ये है चौथा तरीका, जहाँ पे हम हर एक CO का इंडिविजुअल क्लास का टारगेट सेट कर देते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो फर्स्ट CO मैंने लिखा उसमें 70% आना चाहिए, सेकंड में 80, थर्ड में 75, 65, 70, 80। ये टारगेट हम अपनी मर्जी से कुछ भी सेट कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है। जिस लेवल से आपको लगता है कि ये लेवल ऑफ डिफिकल्टी है CO का, तो इसमें कम रखना चाहिए टारगेट या इसमें ज़्यादा रखना चाहिए, उतना टारगेट आप सेट कर सकते हैं। अब जब आपने टारगेट सेट कर दिया तो उसको चेक करेंगे कि अटेनमेंट कितना हुआ। उससे पहले अटेनमेंट में दो तरीके हैं, यहाँ दो चीज़ें हैं। एक है आपका जो इंटरनल असेसमेंट, उसका 40% वेटेज ले रखा है, और एक्सटर्नल असेसमेंट 60% वेटेज के हिसाब से। यहाँ जो एग्जाम्पल हमने शो किया उसमें इंटरनल असेसमेंट 40% वेटेज था और एक्सटर्नल 60% था। कई कई कॉलेज में जैसे हमारे यहाँ 1585 हो सकता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकता है। तो इंटरनल असेसमेंट में कितना एवरेज है, एक्सटर्नल में कितना है, और उसका डायरेक्ट CO अटेनमेंट इस फॉर्मूले से 0.4 इंटू इंटरनल प्लस 0.6 इंटू एक्सटर्नल करके यहाँ हमने एवरेज निकाल लिया। CO1 का परसेंटेज 61 आ गया, CO2 का। इस तरीके से हर एक का अटेनमेंट परसेंटेज निकालना। उसके बाद फर्दर ये तो हुआ डायरेक्ट अटेनमेंट ऑफ CO। उसके बाद इनडायरेक्ट अटेनमेंट भी हो सकता है, उसको हम कंसिडर करते हैं 10%। 90% तो अटेनमेंट हम डायरेक्ट वाला कंसिडर करेंगे, 10% हम इनडायरेक्ट करेंगे। इनडायरेक्ट करना जरूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इनडायरेक्ट अटेनमेंट कर सकते हैं थ्रू सर्वेस, एग्जिट सर्वे, या एलुमनी को या जो आपका कोर्स जिसने पढ़ा उसको एग्जिट सर्वे भेज सकते हैं कि भाई हमने ये पूछा था, तुमको कितना समझ में आया। उस तरह का सर्वे डिजाइन करके इनडायरेक्ट पूछा जा सकता है, लेकिन वो 10% वेटेज है, वो भी जरूरी नहीं है। तो 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया। डायरेक्ट अटेनमेंट ये था, इनडायरेक्ट में एग्जिट सर्वे में इतना परसेंटेज आया, तो CO कितना हुआ 0.9 ऑफ डायरेक्ट प्लस 0.1 ऑफ इनडायरेक्ट। तो उससे हमारा CO का अटेनमेंट आ गया। टारगेट हमने उसके सामने लिख दिया और गैप यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ देखेंगे आप, एक जगह गैप आ रहा है -2.3। तो -2.3 का मतलब ये है कि हमने टारगेट ही कम सेट किया था, बच्चों को उससे ज़्यादा समझ में आ गया। तो हमारा टारगेट 60% था, तो नेक्स्ट ईयर हम टारगेट 65% रखेंगे, ठीक है, या 70% रखेंगे। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे जाएंगे। तो क्वालिटी हमेशा रिलेटिव होती है कि पिछली बार आपका कितना था, उसके रेस्पेक्ट में इस बार कितना इंप्रूव हुआ। तो यहाँ अगर गैप मान लीजिए ज़्यादा आ रहा है, 80% अपना टारगेट था, 18.6% का गैप आ रहा है, इसका मतलब कि ये CO ढंग से पढ़ाया नहीं है। तो अगली बार हम क्या कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें और एक्स्ट्रा करवाएं, कुछ एडिशनल क्लासेस लें या गेस्ट लेक्चर करवाएं, या जो भी तरीका है, ताकि बच्चे को ये टॉपिक और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो इस तरीके से उसको गैप को क्लोज करना है। तो इस तरह से फाइनल आपका फीडबैक बन जाएगा क्लोजर ऑफ क्वालिटी लूप का। यहाँ पे आपके पास CO1 टारगेट लिख दिया हमने, कितना अटेनमेंट हुआ वो लिख दिया, और एक्शन प्रपोज्ड टू ब्रिज द गैप। तो जहाँ पे नेगेटिव है वहाँ तो हमें टारगेट को बढ़ाना है, तो वहाँ टारगेट बढ़ा देंगे। और जहाँ कम है, जहाँ पे गैप आ रहा है, तो उसमें हमने यहाँ पे लिख रखा है कि हम क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में भी यही सब्जेक्ट मुझे मिलेगा, तो मुझे ये चीज़ें और एडिशनल इसके अंदर करनी है, ताकि उस बच्चे का लेवल बढ़े, है ना। अभी तक हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो ये कहता है कि भाई बच्चे का जो आ गया वो आ गया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें आउटकम बेस्ड एजुकेशन में हमें उससे मतलब ये है कि अगर गैप आ रहा है, कोर्स आउटकम अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो एज ए टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को और अपडेट करें या उस स्टूडेंट को और एडिशनल नॉलेज दें, ताकि वो उस गैप को कम कर सके। तो यही हमारा टारगेट है इसके अंदर। क्वालिटी लूप को क्लोज करने का मतलब यही है दैट वी हैव टू रिड्यूस दी गैप, और अगर वो पूरा अचीव कर पा रहा है देन वी हैव टू इंक्रीज दी टारगेट। तो इस तरीके से आपको फाइनल आउटपुट टेबल कोर्स आउटकम के लिए बन जाए। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ एक कोर्स का, एक सब्जेक्ट का, है ना, एक सब्जेक्ट के लिए टेबल बनानी।
इस तरह से आपके पास 40 सब्जेक्ट हैं मान लीजिए, और पूरे इंजीनियरिंग में लगभग है ना 140 क्रेडिट्स हैं। प्रोजेक्ट भी होंगे, प्रेजेंटेशन चार्ट्स, प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, उन सब से मिला के आपका पीओ और पीएसओ अचीव होगा। तो एक तो हुआ आपका एक सब्जेक्ट का कोर्स आउटकम का अचीवमेंट, इसी तरह से आप पीओ और पीएसओ के लिए कर देंगे। तो पीओ और पीएसओ के लिए आपके पास क्या क्या है, कोर कोर्सेज हैं, इलेक्टिव नहीं लेंगे यहाँ पे, प्रोजेक्ट्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो ही लेंगे जिसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसमें हम गैप निकालेंगे, कितना हमारा गैप आता है पीओ और पीओ अटेंडमेंट का, पीओ पीएसओ का टारगेट हमने सेट कर रखा, उसके हिसाब से गैप निकालेंगे, और गैप के हिसाब से हम फिर डिसाइड करेंगे कि किस तरह से हम फर्दर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और किस तरह से हम पीओ का और गैप रिड्यूस कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्टिव, उनके हिसाब से इलेक्टिव ये मानते हैं कि हर बच्चा अलग इलेक्टिव लेगा। यहाँ तो हम क्या करते हैं कि एक ही डिपार्टमेंट इलेक्टिव सबको दे देते हैं, तो इलेक्टिव हुआ ही नहीं। फिर उस केस में तो हम ले सकते हैं, लेकिन अगर 20 बच्चों ने एक इलेक्टिव चूज किया, 20 ने अलग किया है, तो 20 ने अलग किया है, तो उस केस में उस सब्जेक्ट को स्किप कर देंगे। अगर सबको हमने सेम ही दे रखा है तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, हम मानेंगे कि वो इलेक्टिव था ही। लेकिन जहाँ इलेक्टिव वर्ड है तो इनके हिसाब से ये है कि उनको आप कंसिडर ना करें, और जिसमें सबने पार्टिसिपेट किया है वही एक्टिविटीज़ या वही सब्जेक्ट्स हम कंसिडर करें। चाहे तो कर सकते हैं, कैलकुलेशन में तो वो एवरेज होके आएगा। यस सर। मेरा एक क्वेरी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का क्या कोर्स आउटकम और ओवरऑल आउटकम पे इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा सर। सिर्फ इसका मतलब एनालाइज अपन करेंगे, सपोज रजिस्टर्ड स्टूडेंट मेरा 140 है बट रेगुलर स्टूडेंट इट इज ओनली 30। आप नेक में कितने शो कर रहे हैं? नेक में तो 60, तो 60 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। जितने बच्चे आप नेक में शो कर रहे हैं उन सबके रिजल्ट की एनालिसिस करनी है। जो आप शो ही नहीं कर रहे हैं तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं। इंटरनल असेसमेंट है ना जी, तो उसका ऑप्शन हम अलग लेते हैं, रेगुलर नहीं लेते। जैसे कि 4 प्रेजेंटेशन असाइनमेंट, और रेगुलर स्टूडेंट का 4 प्रेजेंटेशन असाइनमेंट हो जाता है। तो इरेगुलर उनका असेसमेंट इंटरनली जस्ट असाइनमेंट देके पूरा करते। एक इंटरनल बात कर रहा हूँ, इंटरनल प्रोग्राम ही हमारा, इसलिए बाहर से कोई आया ही नहीं अभी तक। प्लीज सर मैं आपको बता रहा हूँ, स्टूडेंट से हमारा जो पर्पस है पहले है कि कोर्स आउटकम हम पहले डिफाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम आउटकम हम पहले डिफाइन कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि एमबीए में कितने एडमिशन होने वाले हैं। मैं तो ये मानता हूँ हमने अगले सेशन के लिए सीओ पीओ पहले लिख लिए, क्योंकि वो तो हमें अचीव कराने ही कराने। बच्चे से 5 आए चाहे 50 आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो 5 आएंगे तो 5 के मार्क्स ले लेंगे कैलकुलेशन में, अगर 50 आ गए तो 50 के ले लेंगे। जितने स्टूडेंट आपके पास आ गए उसका आपको कंसिडर करना है। अब आपने नेक में शो किया 60 स्टूडेंट, तो आप 60 के ही मार्क्स की एनालिसिस करें। अब आप कह रहे हैं कि हमने तो उसको चार्ट और प्रेजेंटेशन नहीं दिया, ठीक है, तो अब 2 तरीके हैं। इंटरनल इसलिए बता रहा हूँ, नहीं दिया तब भी कर लें एनालिसिस, एक्सेल में तो करनी है, या तो वैसे कर लें, क्योंकि जब आपने नहीं दिया तो फिर आपने अवार्ड लिस्ट में प्रेजेंटेशन चार्ट के मार्क्स तो भर के दिए, लेकिन एग्जाम को इंटरनल इसलिए बात कर रहा हूँ। असाइनमेंट 15 नंबर का था, लेकिन हमने उसको डिवाइड करके जब हमने भरा नॉन अटेंडिंग के लिए भी, तब भी हमने डिवाइड कर दिया प्रेजेंटेशन चार्ट और असाइनमेंट में, जबकि हमने लिया सिर्फ असाइनमेंट ही था। तो जब हम मार्क्स भरते तो हमने डिवाइड कर ही दिया, हमें अल्टीमेटली यहाँ क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो जब आपने उसको प्रेजेंटेशन के मार्क्स दे ही दिए तो वही मार्क्स यहाँ कैलकुलेशन में काम में ले लीजिए अवार्ड लिस्ट से डायरेक्टली। अब वो बच्चे ने दिया नहीं दिया उससे तो मतलब ही नहीं था ना, आपने अवार्ड लिस्ट में तो मार्क्स दे ही रखे। ये एक सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है।
सर जब हम इतनी सारे सब्जेक्ट की कैलकुलेशन करेंगे 60, 70, 80 सब्जेक्ट की एक्सेल शीट में, तो अगर आप 70 सब्जेक्ट्स लें या 60 सब्जेक्ट्स लें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस अटेनमेंट में आने वाला नहीं है। एवरेज करते हैं हम, और हर एक कोर्स आउटकम का फिर हम मार्क्स देखेंगे तो उसमें एवरेज होते होते वो नेग्लिजिबल हो जाएगा आपका डिफरेंस, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप सबका भी बना देंगे, सारे इलेक्टिव का, ओपन इलेक्टिव का, डिपार्टमेंट इलेक्टिव का, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और अगर आपने 2-4 सब्जेक्ट छोड़ दिए इलेक्टिव के नाम पे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपने बाकी 40 सब्जेक्ट का तो बना ही रखा है ना। आप बाकी 40 सब्जेक्ट की एक्सेल शीट दिखाएं उसको कि हमने इन सारे का कोर्स आउटकम और पीओ पीएसओ बना रखा है, उतना ही बहुत है। उतना अगर कर लेंगे तब तो बहुत हो जाएगा। तो 2-4 सब्जेक्ट अगर छूटते हैं तो उसकी टेंशन नहीं लेंगे। आगे चलेंगे हम। अब हम, ये हमारा हो गया कोर्स आउटकम का अटेनमेंट। अब हम कोर्स आउटकम के थ्रू प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम को अटेन किस तरह से करना है वो देखें। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो कोर्स आउटकम है वो कितना रिलेटेड है प्रोग्राम आउटकम से। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड है तो हम उसको नंबर 3 असाइन करेंगे, मॉडरेटली रिलेटेड है तो 2 असाइन करेंगे, और बहुत कम रिलेटेड है तो 1 इसकी स्ट्रेंथ हम स्ट्रेंथ असाइन कर देंगे 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैपिंग स्ट्रेंथ निकाल लेंगे, लो, मीडियम और स्ट्रॉन्ग। तो हमारा जो कोर्स आउटकम है वो कितना स्ट्रांगली प्रोग्राम आउटकम से रिलेटेड है या नहीं। अगर स्ट्रांगली रिलेटेड है तो 3, मीडियम है तो 2 और लो है तो 1। ये उसकी मैपिंग स्ट्रेंथ हमको लिखनी है। अब हम कैसे देखेंगे कि ये कितना परसेंटेज कितना रिलेटेड है स्ट्रांगली, कैसे अपना अंदाजे से तो लिख नहीं सकते कि स्ट्रांगली रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि अगर 40% ऑफ क्लासरूम सेशन एक पर्टिकुलर पीओ को एड्रेस करते हैं किसी कोर्स के अंदर, तो हम ये मानेंगे कि ये स्ट्रांगली रिलेटेड है। अगर उसके जो कोर्स आउटकम है 40% ऑफ क्लासरूम, टोटल जितनी क्लास ली, मान लो 40 क्लास ली आपने एक सब्जेक्ट की, उसमें से 16 क्लास PO1 से रिलेटेड थी, तो हम ये मानेंगे कि वो स्ट्रांगली रिलेटेड है और उसको हम मैपिंग स्ट्रेंथ 3 असाइन कर देंगे। 25 से 40% है तो मैपिंग स्ट्रेंथ 2 कर देंगे, और 5 से 25% है तो मैपिंग स्ट्रेंथ को 1 रखेंगे प्रोग्राम आउटकम के लिए। और 5% से कम है अगर क्लास, तो इसका मतलब कि वो प्रोग्राम आउटकम को एड्रेस कर ही नहीं रहा। तो इस तरीके से हम ये एनालॉग सर्किट और सिस्टम के लिए 301, जहाँ पे 3 लेक्चर्स हैं, 0 ट्यूट और 1 लैब आवर है, 1 लैब क्रेडिट है। इसमें आप देखें यहाँ पे CO1, 2, 3, 4, 5, 6 COs लिखे हुए हैं, किस किस प्रोग्राम आउटकम और PSO से रिलेटेड है। तो पहला जो CO है वो PO1, PO10 और PS01 से रिलेटेड है। इस तरीके से ये टेबल तो हमने अभी पहले बनाई ली थी, उसमें कौन कौन सी नॉलेज कैटेगरी है और कौन कौन से कॉग्निटिव लेवल है ये भी हमने लिख रखे थे, और क्लास सेशन भी हमने लिख रखे थे। तो ये टेबल जो हमने पहले बनाई यही अब काम आएगी PO की स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए। अब हम देखें PO1 कहाँ कहाँ आ रहा है। PO1 यहाँ आ रहा है 1, 2, 3 और 4, 5, 6, लगभग 6 जगह पे PO1 आ रहा है। अगर हम सब टोटल को काउंट करेंगे इनके कितने क्लास या कितने ट्यूट हैं, तो लगभग 40% से ज़्यादा आएगा, तो मैपिंग स्ट्रेंथ आपकी अकॉर्डिंगली 3 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ टेबल बना दी, उसी का समरी है ये। CO1 के सामने PO1, PO10 और PS01 था, उसी को हमने यहाँ लिख दिया। थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था CO का अटेनमेंट, तो CO1 अटेन हो रहा है 62%, और ऐसे ही हमने सारे CO का अटेनमेंट भी लिख दिया, कितना कितना परसेंटेज CO अचीव हो रहा है। और अब मैपिंग स्ट्रेंथ लिख लेंगे। मैपिंग स्ट्रेंथ लिखने के लिए 11 आउट ऑफ 68 सेशन वर डिवोटेड टू PO1, तो मैपिंग स्ट्रेंथ 1 हो गई। ऐसे ही आपका 13 आउट ऑफ 68, 19% आपका PO2 का था, तो मैपिंग स्ट्रेंथ 1 हो गई। PSO के लिए देखें, PS01 के लिए 68 ऑफ 68, 100% सेशंस आर डिवोटेड टू PS01, तो मैपिंग स्ट्रेंथ 3 हो गई। तो जो हमने क्लास काउंट की थी वो क्लास काउंट करनी है कि कितने क्लासेस आपकी PO1 से रिलेटेड है, 68 में से कितनी क्लासेस PO2 से रिलेटेड है, कितनी क्लासेस PO3 से, तो और परसेंटेज के हिसाब से 40% से ज़्यादा है तो मैपिंग स्ट्रेंथ 3 है, 25 से 40 है तो मैपिंग स्ट्रेंथ 2, और अगर 100% है जैसा कि PS01 के केस में है, PSO में हमेशा 100% ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने पहले बात की कि कोई भी एक कोर्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है तो वो किसी एक स्पेसिफिक PSO से रिलेटेड होगा।
थर्मल का मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड है या हीट ट्रांसफर है, तो वो किसी एक सब्जेक्ट से एक पीएसओ से रिलेटेड होगा, तो सारे के सारे टॉपिक उसी से रिलेटेड है। फिर इसको इस तरीके से एक टेबल और बन जाएगी जो सीओ, पीओ और पीएसओ की मैपिंग करेगी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। मान लीजिए स्ट्रेंथ जो भी आपका सब्जेक्ट है, और उसमें हमने यहाँ स्ट्रेंथ लिखनी है कि PO1 की स्ट्रेंथ क्या है, PO2 की क्या है, कुछ की 0 भी होगी क्योंकि वो उस सब्जेक्ट में कवर ही नहीं हो रहा है, PO5 कवर नहीं हो रहा है, या जो भी है ना आपका 7 है, 8 है, 9 है, तो जो कवर नहीं हो रहा उसकी 0 स्ट्रेंथ है, बाकी की स्ट्रेंथ जो हमने पहले निकाली 1 2 3 वो हमने यहाँ लिख दी। ये एक सब्जेक्ट के लिए हुआ। ऐसे जितने सब्जेक्ट हैं सब अपनी अपनी सब्जेक्ट की टेबल बना के HOD को दे देंगे और वो फिर कंपाइल कर लेगा उसको। अब उसका फॉर्मूला क्या है, अटेनमेंट ऑफ PO एंड PSO का एवरेज ऑफ अटेनमेंट्स ऑफ ऑल द रिलेवेंट CO मल्टीप्लाइड बाय स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर क्या है, एक्चुअल मैपिंग स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल मैपिंग स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम पॉसिबल 3 थी, एक्चुअल किसी की 1 होगी, किसी की 2, किसी की 3 होगी, तो 1/3 या 2/3 या 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये कैलकुलेशन है अटेनमेंट ऑफ PO1। तो PO1 का अटेनमेंट कितना हुआ किसी पर्टिकुलर कोर्स में, 1 उसकी मैपिंग स्ट्रेंथ थी PO1 की, और 2 कोर्स आउटकम थे जो PO1 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो दोनों का एवरेज ले लिया 0.623 और 0.669 जो उनका परसेंटेज अचीव था। फर्स्ट वाला CO1 62.3 अचीव था, सेकंड वाला 66.9 था, उन दोनों का एवरेज लेके मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 से, तो ये आपका आ गया PO1 अटेनमेंट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स C इंटू जो भी आपका नंबर उसका कोर्स कोड है। सिमिलरली PO2 कितना हो रहा है, PO3 कितना हो रहा है, PO4, PO5 और PO10। तो एक सब्जेक्ट में से हो सकता है PO1 कवर हो, PO2 हो, 3 हो, 4 हो सकता है सारे कवर हो सकता है कोई भी कवर ना हो, तो वो आपको उन सबके लिए कैलकुलेशन करनी है, और PSO1 के लिए भी कैलकुलेशन करनी है। तो ये सारा उनका परसेंटेज अचीवमेंट निकल गया, और इस तरह से हमने उसको टेबल की फॉर्म में जो पहले टेबल बनाई थी नीचे एक लाइन और ऐड कर दी है कि कितना अटेनमेंट आ रहा है। तो PO1 का इस C302 सब्जेक्ट में 0.22 अचीवमेंट आ रहा है, 0.215 को अप्रोक्सीमेट कर लिया 2 डिजिट तक, फिर 0.23, 0.65 लाइक दिस हमने सारा लिख दिया है। ये एक सब्जेक्ट की टेबल कंप्लीट हो गई। अब ऐसे आपके पास जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट की टेबल एक के नीचे एक आपको बना देनी है। C101, 302, 806 फाइनली आपका प्रोजेक्ट आएगा, और इन सबका आप एवरेज ले लेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल हमने लिया है PO10 के लिए। PO10 का जो अटेनमेंट आ रहा था वो 0.25 आ रहा था, जितना भी हमने उससे कैलकुलेट किया टेबल बना के। इनडायरेक्ट अटेनमेंट जो एग्जिट सर्वे या एलुमिनी सर्वे और इनके थ्रू हम निकालेंगे, अगर निकालना चाहें तो वो 0.355 आ रहा है। और इसके केस में वहाँ हमने 90 और 10% लिया था CO में, यहाँ 80 और 20 का रेशियो लेके, और उससे हमने PO10 की अटेनमेंट निकाल लिया 0.27। अब ऐसे ही हम सारे PO के लिए निकाल लेंगे कितना अटेनमेंट आता है। अगर आपका अटेनमेंट टारगेट से कम है तो आपको इम्प्रूवमेंट एक्शन प्लान करने हैं, और अगर अटेनमेंट आपका टारगेट से ज़्यादा है तो टारगेट को रिवाइज करना है। टारगेट कैसे सेट करना है, टारगेट आप अपने हिसाब से, जैसे हमने CO में सेट किया था वैसे ही हम यहाँ सेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टारगेट लेने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि उतना अचीव होगा नहीं। पहले ही तो मैपिंग स्ट्रेंथ 1/3 हो जाएगी, तो 30% से लेकर 50%, 0.3 से 0.5 के बीच में ही टारगेट सेट करें। उससे ज़्यादा सेट करेंगे तो आपका अचीव नहीं हो पाएगा, और गैप बहुत ज़्यादा आएगा तो उसको आप फुलफिल भी नहीं कर पाएंगे। कहीं आपको लगता है तो 0.1 से कम भी टारगेट रखा जा सकता है। यहाँ टारगेट से एब्सोल्यूट से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट से। तो अगर आपने 0.05 भी टारगेट रखा है और नेक्स्ट बार आप उसको इंप्रूव करके 0.06 तक जाते हैं PO में, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर एक PO का टारगेट अलग अलग हो सकता है, हर एक PO अलग अलग लेवल पे अचीव हो सकता है। तो टारगेट आप अपने हिसाब से, आपको जो लगता है कि किस लेवल पे आपके PO सेट किए हुए हैं और कितना आप उसको CO में कंसिडर कर रहे हैं, उस हिसाब से आप टारगेट सेट कर सकते हैं। PSO के लिए 0.3 से 0.5 रियलिस्टिक टारगेट है, और PO के लिए आप जैसा चाहें वैसा टारगेट आप डिसाइड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट टारगेट्स आर ऑफ लेस कंसर्न देन द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जो मकसद है क्वालिटी का या इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल का, वो ये है कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ना कि एब्सोल्यूट टारगेट क्या है। तो हमारा अगर ग्रेड B है तो हम A पे जाएंगे, A में चले गए फिर A+ पे जाएंगे, फिर A++ पे जाएंगे,
और उसके बाद A++ में भी जितना स्कोप है 3 पॉइंट मान लीजिए 7 से लेके 4 तक, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, ना कि आपका एब्सोल्यूट क्या वैल्यू है उससे कोई मतलब नहीं है। तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट जरूरी है। तो PO10 में मान लीजिए आपका अटेनमेंट हुआ 0.25, टारगेट था 0.35, तो 0.1 का गैप है, और इसके लिए हम एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। PO10 इज बेसिकली रिलेटेड विद कम्युनिकेशन, तो एक्टिविटीज़ जो यहाँ लिखी हो कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कि हम एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन लैब चला देंगे 3rd सेमेस्टर में एज ए वैल्यूएटेड कोर्स, या फिर हम 4th सेमेस्टर में 3rd में एक सेमिनार चालू करेंगे, या 4th के एंड में 5 डे वर्कशॉप हम कम्युनिकेशन स्किल कर देंगे। तो इस तरह से हर एक PO का जो मतलब है उसके हिसाब से हमें उसका सॉल्यूशन देना पड़ेगा कि ये हम कर सकते हैं इसके अंदर। These are the references। NPTEL से सारा कंटेंट लिया है हमने, टीचिंग एंड लर्निंग बाय प्रोफेसर NJ राव, ISC बैंगलोर से है। इन्हीं का पूरा वीडियो कंटेंट है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, NPTEL पे अवेलेबल है, वहीं से सारा ये बनाया गया है। एक बुक अवेलेबल है, वो हम आपको शेयर